سے الگ ہے سب سے جدا. سنو ایک نئی آواز, باتیں نئی ہے نیا انداز. سنو ایک نئی آواز, دل سے ہے آپ کے ساتھ نیا ہے یہ پیش قدم. السلام علیکم. میں عروا بت. میں مرزا تجمل. ہماری ایک اور نشست میں آپ کا خیر مقدم. آج کے شمارے میں ہم لے کر آئے ہیں دوست صبح بیان انسان شام تان رپیات زینان انسان اصل پہ ہاتھ تہ ڈوڑ ہاتھ تہ مگر ون یت پہ رپیہ 50 تہ دوست پھلان کی. کشمیر کی دستکاری زوال پذیر. کیا اسی کے ساتھ کشمیر کی روایتی دستکاری کا خاتمہ ہوگا؟ اور اگر آپ کے پیر پھٹے ہوئے ہیں، نیہا کے پاس ہے اس سے نمٹنے کے لیے کچھ نسخے. یہ ایک آسان اور فائدہ مند طریقہ ہے جس سے آپ خشک اور پھٹی ایڑیوں سے نجات پا سکتے ہیں. آج کل فیس بک موضوع بحث بنا ہوا ہے. کیا کشمیر میں فیس بک پر پابندی عائد ہونی چاہیے؟ کشمیر میں میسیج سروس بند ہے تو اس لیے ہم ایکسیس ٹو اپنے فرینڈس کو تھرو فیس بک ہی کرتے ہیں. بالکل بین ہونی چاہیے فیس بک پہ. لیکن آج کے شمارے کا آغاز کرتے ہیں ایک اسکٹ سے جو ایک حقیقی واقعے پہ مشتمل ہے. یہ ایک ایسی کہانی ہے جو ہمیں یاد دلاتی ہے اولاد کے تئیں ماں کی بے انتہا محبت کی. کتنی تکلیفیں سہنے کے باوجود ماں ایک بچے کو جنم دیتی ہے، لیکن بدقسمتی کہ اولاد ماں کی ان تمام تکلیفوں کو کچھ ہی پل میں بلا دیتا ہے. چلیے سنتے ہیں سیگمنٹ خاص بات خاص انداز میں ایک ایسی ہی کہانی. میانی خدایو یہ کیا گوم عاقب صبح بلایا لگے زیاد ماں لگئی. عاقب صبح ژٕ گئی فرق ونیا چھی نہ دوا ضرورت. موجی ان ہیکا سکول گژھِتھ. اہن لگیا بلائے اد کیا کرک ژٕ پرک تو بنک اکھ رُت انسان. سائمہ جیو اس چھنا سالس گژھن سی تیار چھ گمت. عاقب صاحب گوا تیار؟ اہن تم نبر کن پیاران اد سی پیار تمہ سی اکہ بتہ آئی سو تیار گژھت. عاقب صاحبہ ژٕ کتیو اوس ہم دہس ٲسے پیاران پریشان کرتھس. اسے اوس سالس گژھن تم کیا آسن سوچان. موجی بھائی آس طور پھیرت. آوکھٕ پھیرت؟ اہنی آ بھائی آس طور پھیرت. ژے ونتھوے نہ مےٚ. وہ کت ون ہے بچہ ثک بہت ہر کن پن پان سجاوان. ژے میں تفریق اونمت تلک موجی. وہ کتی پکناو ژٕ بہر کن جائے پانس ست. موجی یل تہ بہ ژےٚ سۭتۍ آسان چھُس ژپٲرۍ چھم شرمندگی محسوس گژھان. موجی چٲنۍ اکھ أچھ آسن تہ روٗد مےٚ ہمیشہ تفریقہ. ہمیشہ چھم گژھان شرمندگی محسوس. ادٕ بہٕ لگے بلاے بہٕ آس نہٕ ژےٚ سۭتۍ زٕہٕنۍ نیران. موجی سایمہ جی تہ مے چھے کٲم اسہِ لگنے 2-4 دۄہ تہٕ أسۍ درٛایی. اما مےٚ ما کوٚر غلط؟ مےٚ ووٚن نہٕ ماجہِ پوٚز. کر تھو کٔہۍ مکلیو یہ تفریق. ژٕ وٕچھ أسۍ کوٗتاہ خۄش روزو تتہِ. ام عاقب صٲبن ونیوم 4 دۄہ لگنم. تن تہ گٔے وۄنۍ 4 ؤری. بٕچھ ما آوُم واپس. خبر خٲر چھُس. سائمہ جی او اس میں پہ پگہ کشیر ترن. کیازِ؟ اس چھُ تھوڑا بزنس کٲم. ییٚتہِ اَندٕ نہ تتھ خٲطرٕ پیٚیہِ اَسہِ ضروٗری کشیر ترن. وۄنۍ چھِ یپٲرۍ آمتی مےٚ باسان پراپرٹی ہُنٛد تفریق تہِ مکلاوو. مگر تتھے چھِ موج بٕتھِ. سُہ ترٛایہِ ژٕ مےٚ پٮ۪ٹھ بہٕ کرٕ سُہ سورُے پانے. ییٚتہِ چھُ قُلف. وۄنۍ کیٛاہ کرو أسۍ نیرو واپسٕے؟ نہ واپس کیازِ نیرو؟ مےٚ چھُ باسان ماجہِ آسہِ کونٛس تھٲمٕژ چاچی ہٕنٛز گرِ. بہٕ دِمے تٔتۍ نظر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تُہۍ کَم حظ چھِو؟ بہٕ حظ چھُس عاقب.
अच्छा तो मत बिंटाट को नेचू अहनस तो उसको हारे अहनस ठीक पे मजमस ये कौन थमस बस से प्यारा कौन छे न थमस तम छे से खतर चिट थमस गुबरा लगे बलाए हमें शुरू से शर्मंद करान तस खतर छसे माफी मंगान मोज छना पन्निस औलादस छायन त ग्रायन आसान वुचान जा छन पन्निस औलाद सुन तकलीफ बर्दाश्त करान ये कथ बाव हाय न बजा मगर विंकनस छस ना मरन सर अमार ओसुम चोन यूत जे चलो गई एक दो दब लग चारस तो गो हम अश रोज बर्दाश्त गोम न जिम्मेवान गाश तारुख रोजा बेशूब ये मेनस लोल गुबरस पामु तेहन तिम हेतम पानस तवै असै बकने मुझे मेरी समझ मैंने पर सुना मुझे मेरी समझ मोन मुझ क्या पन्निस औलादस खतर करान मगर इस औलादन छन ज़ात आसान तेज कदर मुझे मेरी से माफी इस स्किट में माँ का किरदार निभाया था फनकार नजमा ने और बेटे और बहू का किरदार निभाया था तजम्मुल और इरवा ने। हमारी फनकार और हमारी पेश कदम की पूरी टीम बेसब्री से जानना चाहेंगी कि यह स्किट आपको कैसा लगा। आप हमें मेल कर सकते हैं peshkadam@gmail.com। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट करियर काउंसलिंग की तरफ। करियर काउंसलिंग सेगमेंट में हम आपको अक्सर नए पेशों या उनसे जुड़ी बातों से वाकिफ कराते हैं, लेकिन आज हम आपको कश्मीर में हजारों सालों से मौजूद एक ऐसे पेशे के बारे में बताएंगे जो अदम तवज्जुही की वजह से खात्मे की दहाने पर है। हम बात कर रहे हैं कश्मीरी दस्तकारी की। पेश कदम के आरिफ बशीर आज हमें कश्मीरी दस्तकारी से रूबरू कराएंगे। कुछ बरस कबल कश्मीरी दस्तकारी वादी के लगभग तमाम घरों में मशहूर था। हर कोई इस पेशे से जुड़ना पसंद करता था। लेकिन आज कुछ कारीगरों जैसे कि बीरवा के मंजूर अहमद का कहना है कि अब कश्मीर के इस रिवायती कारीगरी का वजूद खोता नजर आ रहा है। असल बराबरी दो सुबह बेवान इंसान शाम तन रपयात जेना इंसान असल पे हाथ डोड़ा मगर वन रबी 5 दोस्त फलान किया। इस सनत से जुड़े कुछ कारीगरों जैसे कि बीरवा की वहीदा अख्तर का कहना है कि रोजगार के दूसरे वसाइल फराहम होने और इस सन्नत में पैसों की कमी होने के सबब लोग कश्मीरी दस्तकारियों से अलग हो रहे हैं। यह गई अम मूजूब क्या मशीन अम मूजूब गई खत्म बे गई अम मूजूब तक रेट रूजन बराबर कहें वन नौ जनरेशन आई माना कर। ताहम कुछ जैसे कि कारीगर अब्दुल मीर का अभी मानना है कि कश्मीरी दस्तकारियों की अजमत को बहाल करने से यहाँ के मुकामी कारीगरों की मैशत बेहतर हो सकती है और साथ ही इस रिवायती सन्नत को महफूज भी रखा जा सकता है। इस सन्नत से जुड़े रहने के कई सारे फायदे हैं। कश्मीरी दस्तकारी एक ऐसा फन है जिसे आप घर बैठे ही अंजाम दे सकते हैं। खवातीन शाल या कपड़े वगैरह पर सोजनकारी करके घर बैठे ही अपना रोजगार कमा सकती है। इसके अलावा इस सन्नत से जुड़े रहने के लिए आपका तालीम याफ्ता होना भी जरूरी नहीं है। इसका एक और फायदा ये भी है कि खवातीन के एक साथ काम करने से समाजी मेल जोल बढ़ जाता है। इस सन्नत में कामयाब होने के लिए एक कारीगर को अच्छी तरबियत और माली इमदाद के अलावा उसके तैयार करदा अशिया के लिए बेहतर मार्केट भी दस्तियाब होना चाहिए। आरिफ बशीर, पेश कदम। शहर श्रीनगर में टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के ताउन से एक क्राफ्ट डेवलपमेंट इनिशिएटिव प्रोग्राम शुरू किया गया है जिसके तहत कारीगरों को वुड कार्विंग और सोजनकारी की तरबियत दी जाती है। बिमिना में कायम वुमेन्स पॉलिटेक्निक कॉलेज में लड़कियों को सिलाई और फूड टेक्नोलॉजी की तरबियत दी जाती है।
اس کے علاوہ سری نگر کے اولڈ سیکریٹریٹ علاقے میں ایک سیمی گورنمنٹ تنظیم وومنس ڈیولپمنٹ کارپوریشن خواتین کو تربیت کے ساتھ ساتھ مالی مدد بھی کرتی ہے۔ اچھا ہے اگر ہم روزگار کے نئے وسائل فراہم ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنے روایتی پیشوں کو مضبوطی سے تھامے رکھنا چاہیے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں کشمیری دستکاری میں پھر سے جان ڈالنی چاہیے تاکہ ہمارے نوجوان نسل اس سے استفادہ ہو۔ ہائی بلڈ پریشر یتھ من ساس پت قشر مبتلا گمت، یہ اخ تیز بیماری یس زن عمر ہندس کن تہ پڑاوس پہ ہیک گژھت۔ کینٛہہ لوگ تم تہ یم زن ات بیماری مز مبتلا آسان مگر تمن چھنہ خبرے آسان۔ پننہ صحتک تھیو خیال تو أزۍ کرنٲیِو چیک اپ۔ یاد تھیو تہند صحت چھ تہنز زندگی۔ آپ پیش قدم کو سماعت فرما رہے ہیں FM 102.6 میگا ہرٹز پر۔ تھامس ایلوا ایڈیسن کو آج بھی ان کی کئی ایجادات کے لیے یاد کیا جاتا ہے۔ ان میں سب سے اہم ایجاد جو دور نو میں ہماری زندگیوں کا ایک اہم حصہ ہے وہ ہے لائٹ بلب۔ لیکن ایڈیسن کی پسندیدہ ایجاد فونوگراف تھی، ایک مشین جو آواز کو ریکارڈ اور بجا بھی سکتی ہے۔ آج سنگمیر میں پیش قدم کے اویس گرکو ہمیں تھامس ایڈیسن اور ان کی پہلی ایجاد جو 19ویں صدی میں نومبر کے اسی ہفتے میں پائے تکمیل تک پہنچی تھی بتائیں گے۔ تاریخ میں 21 نومبر کی ایک خاص اہمیت ہے کیونکہ 21 نومبر 1877 عیسوی میں ایڈیسن نے ایک عظیم کارنامہ انجام دیا۔ یہ فونوگراف کی ایجاد ہے جس سے ایڈیسن خود اپنی لیبارٹری میں ٹیلی فون مواصلات پر کام کرتے ہوئے حیران ہو گئے۔ اس ایجاد سے ایڈیسن کو آگے تجربات کرنے کی حوصلہ افزائی ہوئی اور وہ حیران ہو گئے جب انہوں نے اپنا ایک ریکارڈ کیا ہوا گیت میری ہیڈ اے لٹل لیمب سنا۔ Mary had a little lamb, its fleece was white as snow, and everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. فونوگراف کی ایجاد نے ایڈیسن کو دنیا بھر میں مشہور کیا۔ اس ایجاد کو ایک طرف چھوڑ کر ایڈیسن نے 1878 عیسوی میں چمکتے ہوئے روشنی والے لیمپ پر کام شروع کیا اور دوسری جانب دیگر معجد نے فونوگراف کی درستی کے لیے کام شروع کیا۔ لیکن 1887 میں ایڈیسن نے چارج سٹینٹر کے بنائے ہوئے ویکس سلنڈر کی مدد سے فونوگراف پر پھر سے کام شروع کیا۔ اگرچہ ابتدائی طور فونوگراف ڈکٹیٹنگ مشین بطور استعمال ہوئی لیکن بعد میں یہ دل لبھانے والی ہر دل عزیز سامان ثابت ہوئی۔ اس طرح 1906 میں ایڈیسن نے اپنی نیشنل فونوگراف کمپنی کے ذریعے میوزیکل اور تھیٹریکل سلسلے کی نقاب کشائی کی اور 1912 تک اس کی درستی ساری اور جاری رہی۔ لیکن 1920 کے دوران اس میں ریڈیو کے ایجاد سے کچھ دھچکا لگا اور 1929 میں یہ ڈیوائس مکمل طور زوال پذیر ہو گیا۔ ایڈیسن جس نے 84 سال تک 1093 ہکا بکا کرنے والے پیٹنٹ حاصل کیے، 1971 میں انتقال کیا۔ وادی کشمیر میں نئی سوچ اور کچھ الگ ایجاد کرنے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے، جن میں سے کچھ کو ہم آپ سے متعارف کرواتے ہیں اپنے کسان سنچار سیوا سیگمنٹ میں۔ اس ہفتے پیش قدم کے اریب اسلم ہمیں رورل ریفریجریٹر کے بارے میں بتائیں گے جسے 2 جوان بچوں نے ایجاد کیا ہے۔ ہمارے دیہاتوں کی اکثر آبادی غریبی کی سطح کے نیچے زندگی بسر کرتی ہے۔ ایسے میں عیش و عشرت کے آلات بہت کم دستیاب رہتے ہیں۔ بعض اوقات اگرچہ ٹی وی، فریج، واشنگ مشین وغیرہ کسی گھر میں ہوتے بھی ہیں لیکن بجلی نہ ہونے کی وجہ سے استعمال نہیں کیے جا سکتے۔ دیہاتوں میں بجلی کئی دنوں تک غائب رہتی ہے۔ اکثر یہاں کی آبادی کو مہینوں اندھیرے میں گزارنے پڑتے ہیں اور اگر بجلی کا ٹرانسفارمر خراب ہو جائے تو اسے درست کرنے میں سالوں لگ جاتے ہیں۔ ایسے میں فریج کا استعمال کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ اسی اسنا میں تحرین قیصر اور عمر علی
कि तैयार करदा देहाती फ्रिज की अहमियत कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। इन दो छोटे बच्चों का ये फ्रिज इवेपोरेशन यानी भाप बनने के तरीकेकार पर मबनी है। इस फ्रिज के 3 खाने हैं। बाहरी खाना स्टील का बना हुआ है और ऊपरी तरफ से चंद सुराख हैं। इसके बाद वाला खाना तांबे का बना हुआ है। बाहर की तरफ से ये रुई से ढका हुआ है। इस्तेमाल की चीजें इसी में रखी जाती हैं। इस खाने के अंदर एक और खाना है जो अंदर से रुई से ढका हुआ है और इसके बाहर वाले खाने में पानी रखा जाता है। ये पानी ही कूलेंट का काम करता है। तहरीन कैसर और उमर अली, आप दोनों को ये कारनामा सर अंजाम देने के लिए बहुत बहुत मुबारक। किसान संचार सेवा को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है किसान संचार ने, जो किसानों को इल्म से मजाज बनाना चाहते हैं। अगर आप उनसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप उनसे राब्ता कर सकते हैं www.kisansanchar.com पर या हमें ईमेल करें peshkadam@gmail.com पर। हमें एक ईमेल मौसूल हुआ है हमारे रेगुलर लिसनर जनाब शेख मोहम्मद अल्ताफ से। लिखते हैं, आज का शुमारा बहुत उम्दा था। किसान भाइयों के लिए नया सेगमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा। और मजीद लिखते हैं, पेश कदम को लोग काफ़ी पसंद करते हैं। आपका प्रोग्राम बहुत सारी अच्छी सेगमेंट से सजा हुआ होता है, जैसे एजुकेशन, म्यूज़िक, नई मालूमात वगैरह। मैं चाहता हूं कि आप अपने प्रोग्राम में जॉब न्यूज़ शामिल करें और अपने प्रोग्राम का वक्त बढ़ाएं। अल्ताफ, आपकी ईमेल पढ़ना काफ़ी अच्छा लगता है। हम आपकी हौसला अफजाई के लिए शुक्रगुजार हैं। हमें खुशी है कि आपको हमारा सेगमेंट अच्छा लगता है। रही बात जॉब सेगमेंट की, उसकी जानकारी हम अपने करियर काउंसलिंग सेगमेंट में देते हैं। मजीद तफसीलात के लिए हम आपको मेल करेंगे। और जो आपने बात छेड़ी है प्रोग्राम के वक्त बढ़ाने की, वो चंद एक मुश्किलात की वजह से नहीं बढ़ा सकते। एक बार फिर हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे दोस्त, और हम उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही हमारा हौसला बढ़ाते रहेंगे। क्या तुम छुआ सरकारी दफ्तरन हिंज काम काज से खुश? अगर न, फिक्र करने छन कह जरूरत। जम्मू एंड कश्मीर हुकूमतन छु लुकन हिंद सहूलियत खतर पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट बनोमुत। यह कानून छु 10 अगस्त 2010 पे लागू गोमुत। अमि कानून सहित हेकन लुक राशन कार्ड, पावर कनेक्शन, स्टेट सब्जेक्ट, रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट, फर्द इंतखाब, गिरदावरी, लर्निंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ियन हिंज रजिस्ट्रेशन, जनिच या मरनिच सर्टिफिकेट तो बेई हेकन लुक PDD, PHE, म्यूनसिपलिटी दफ्तरन पे कह तामीर करने खतर NOC हासिल करित। अगर यम सहूलियात तुह 3 दोहन अंदर अंदर मुहैया सपदे न, तेल हेकू तुह मुकर्रर करमित हुकामन निश शिकायत करित। शिकायत करने खतर गछि तुह निश पन्ने दरखास्तुक रसीद आसुन। युस जिम्मेदार ऑफिसर तुहदिस दरखास्तस 3 दोहन अंदर अंदर जवाब दी न, तमिस हेकि 500 पे 5000 तामत जुर्मान गछित। पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट फायदे तुलनुक हक छु असे सारनी लुकन, मगर जरूरत छे अवामी बेदारी हिंज। आप सुन रहे हैं पेश कदम FM 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमें कुछ और ईमेल्स मौसूल हुए हैं जो हम आपको पढ़कर सुनाएंगे। मुजम्मिल गनाई ने हमसे पूछा है उन वेबसाइट्स के बारे में जो हमें हमारा होमवर्क करने में मदद कर सकते हैं। इसकी जानकारी हमने अपने 100वें एपिसोड में हमारे डिजिटल रेवोल्यूशन सेगमेंट में दी थी। मुजम्मिल, आपके लिए हमने वो सब मालूमात आपको मेल की हैं। आफ्ताब आलम ने भी हमें खेल के रंग सेगमेंट के बारे में लिखा। आफ्ताब लिखते हैं, मैंने इतवार के रोज़ आपका प्रोग्राम सुना। आपके स्पोर्ट्स सेगमेंट में काफ़ी बेहतरी आई है। बिशन सिंह बेदी और अबू निचम का इंटरव्यू सुनकर काफ़ी अच्छा लगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी ऐसे ही काम अपना जारी रखोगे। हौसला अफजाई के लिए शुक्रिया। उम्मीद है कि आप पेश कदम को ऐसे ही सुनते रहेंगे। किसी सलाह, जानकारी या मशवरे के लिए हमें मेल कीजिए
peshkadam@gmail.com पर। पिछले हफ्ते हमने आपको एक नए सेगमेंट मेरी कहानी से मुतारिफ कराया, जिधर हम झांकते हैं किसी की जिंदगी में, वो जिसे आप हर रोज देखते हैं लेकिन कभी उनसे बात नहीं हो पाती। यह है उनकी कहानी, उनकी ज़बानी। आज की मेरी कहानी है मिस्र के बारे में, जो पेशे से एक सफाई करने वाली है। इस कहानी को आप तक पहुंचाया है पेश कदम की सबा मलिक और सईद रुफैदा ने। मे नाव मिस्र, रोजान मूथ पर बॉय ोर गुजरे अने खुदायस हवाल पन अयाल बेस खुदायस हवाल पन अयाल लगे सुबह वतन सुबह वतन रनान बता गो पड़ान नमाज नमाज मकलान पढ़ रनान बत चाय कर ढोन वोन कर मकलान कम कर वतन तुलान बत अथस क्या तो वातान यूनिवर्सिटी वातान तो दोहस स्वीपर दुहकन चन पहर ओर योर योर होर तम योर तम तो कर मकलान 5 बजे तो वत बे गर बे तत गुपन शुरन घरस यीचाहन हेकन शाम तत यीचाहन कर टाइम दपा सोरे कर गर टाइम बसान थप थस वे बत तो दव कड़ान यूनिवर्सिटी नेर दह क्या दह नेरान मजबूरी गर बोय गुजरोमुत तमस शुर तम माल तो माजर तम मे रचि बह कत तम रपये तम कस हम बह रपये मे कुछ दिहा तम मे जेन तो तम लाग बे बोय हार्ट पेशेंट 10 वर बेमार तमिस तोक मे और योर कर तो बिचार सह गुजरो पे वनकस हे मे तमिस कोड़ रपयस 50,000 तेल लगित ये मे जीनमत बह कत अनहा पे हे मे खानदर कर मे सह बोय बेमार मे हे पे खानदर कर बोय बेमार कर 10 वरी बेमार मे दोप अगर बह खानदर कर मे मा त्रावहन तम खानदर तम मा त्रायन पन ओश मा त्राय कह मे दोप अगर बह दिव तोड़ मे मा त्राय हुमन बचन कुछ रच तमन मा हेकन पेशन वेशन रच मे कर पन जिंदगी दरबदर तो तम रच दपान खुदाया मेन अथ यीतन कस बकार अगर न मे कोर मगर वह गई तन मेन अथ कस बकार खुदाया वह थम सेहत वह थम मेन अथ यीतन कस बकार यम पत कुन यीचाहन मे वह यीचाहन यीतन बे कस बकार यूता मे कोर खुदाया थन ती कबूल बे यीचाहन मे वह चल तीचाहन कर बे कश्मीर में सर्दी का मौसम शुरू हो गया है और इसका असर आपकी जिल्द पर दिखना शुरू हो जाता है। नुमाया फ़र्क है जिल्द का खुश्क हो जाना, और कभी कभार ये असर आपके पैरों में भी दिखना शुरू हो जाता है, जिससे पैर फट जाते हैं। पेश कदम आपके लिए लाया है चंद घरेलू इलाज आज के नेहा के नुस्खे में। अस्सलामुअलैकुम सामीन, मैं हूं आपकी मेज़बान नेहा जैन और आप सुन रहे हैं नेहा के नुस्खे। सामीन, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ चंद ऐसी करामाती तरकीबें जिन्हें अमल में लाकर आप फटी एड़ियों से निजात पा सकते हैं। फटी एड़ियों से राहत पाने के लिए अपने पाँव को धो लें और फिर सुखाकर घी लगाएं। उसके बाद अपने पाँव में गर्म मोज़े पहन लें और इसे पहनकर रात भर सो जाएं। या फिर अपनी एड़ियों पर पके हुए केले का पेस्ट इस्तेमाल करें। 10 मिनट तक रहने दें और फिर पानी से अपने पैरों को धो लें। ये एक आसान और फ़ायदेमंद तरीका है जिससे आप खुश्क और फटी एड़ियों से निजात पा सकते हैं। अपने पाँव को नींबू के पानी में 10 मिनट तक रखें। इस नुस्खे का इस्तेमाल हर हफ्ते करें जब तक आपको फटी एड़ियों से राहत नहीं मिल जाती है। अपने पाँव को रोज़ाना अच्छे से धोएं और मॉइस्चराइज करें। सोने से पहले अपने पाँव को शैम्पू वाले गर्म पानी में 15 मिनट तक रखें। फिर साफ पानी से उन्हें धो लीजिए। उन्हें सुखाकर वैसलीन या ग्लिसरीन और नींबू के रस का मिक्सचर बनाकर पैरों में लगाएं। इससे भी आपको फटी एड़ियों से राहत मिलेगी। तो सामीन, ये तो थे इस हफ्ते के नुस्खे। मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ नए नुस्खों के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज।
पिछले हफ्ते हमने आपसे पूछा था कि एक नॉर्मल इंसान का ब्लड प्रेशर कितना होता है। इसका सही जवाब है 120/80। सही जवाब भेजने वाले पहले शख्स हैं शेख मोहम्मद अल्ताफ। अल्ताफ, हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे स्टूडियो आकर हमारे स्टूडियो की जीनत बढ़ाएं। आज का हमारा इनामी सवाल है कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपकी गाड़ी और आपके सामने वाली गाड़ी के बीच कितना फासला होना चाहिए। हम सवाल एक बार फिर से दोहराते हैं कि एक दूसरे के पीछे चलने वाली दो गाड़ियों के दरमियान कितना फासला होना चाहिए। आप हमारे मेल पर हमसे राब्ता करें, हम मुंतजर हैं। वक्त हो चला है आज के सवाल का। आज का सवाल है, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, आपके और जो गाड़ी आपके आगे है उनमें कितना फासला होना चाहिए। आप जवाब भेज सकते हैं peshkadam@gmail.com पर। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होने को आया है, लेकिन उससे पहले पेश करते हैं कथपेंट सेगमेंट। जैसे कि आपको मालूम होगा, कुछ अफवाहें चली थी कि फेसबुक पर कश्मीर में पाबंदी आयद की जाएगी। लोगों को यकीन हो चला था कि इस पे पाबंदी आयद की जाएगी, जब कुछ नाजेबा और खिलाफ इखलाक तस्वीरें और पेजेस बनाए गए थे। इसलिए आज की कथपेंट में हमने आपसे पूछा है, क्या फेसबुक पे पाबंदी लगानी चाहिए। मेरे ख्याल से फेसबुक बंद नहीं होना चाहिए था, बिकॉज इट्स अ वेरी लाइक गुड सोर्स ऑफ सोशल नेटवर्किंग एंड मुझे लगता है कि ये चलना चाहिए, इसका प्रॉपर यूज होना चाहिए। ऑब्वियसली फेसबुक बंद होना चाहिए। फेसबुक पे जो बैन के रूमर्स आए हैं, ऐसा होना चाहिए कि फेसबुक बैन होना चाहिए, क्योंकि अभी अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो लोगों का जो है माइंड वो डाइवर्ट हो रहा है। बच्चों का, ज्यादातर बच्चों की बात करें तो बच्चों पे काफी असर कर रहा है। ये हर एक बस इसी की तरफ डाइवर्ट हो। आई थिंक फेसबुक बंद नहीं होना चाहिए, बिकॉज कश्मीर में मैसेज सर्विस बंद है, तो इसलिए हम एक्सेस तो अपने फ्रेंड्स को थ्रू फेसबुक ही करते हैं। बिल्कुल बैन होनी चाहिए फेसबुक पे, और रीजन ये है कि जो लोग वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम एंड दे डोंट हैव टाइम फॉर देयर मॉरल वैल्यूज। फेसबुक असल सोशल नेटवर्क यह जन फायदेमंद प्रत कंस अकिस इंडिविजुअलस खतर, मगर यम जन ओत्र पे गई अत मज कह पेज बनावन कुन फॉर एग्जांपल डेमोक्रेटिक कंट्री रोजान, अगर कुन मजहबस लाइक करान, बट दैट डजंट मीन कि मतलब बेकिस अकिस मजहबस करो डिसरेस्पेक्ट या बे तुथ अनलॉफुल या इलीगल वनो तम खतर तह गुस गन कह, तथ खिलाफ गई एक्शन इन as soon as possible. Actually, I think Facebook should not be banned at all, because we are already backward at global level. Kashmir is already backward. By banning this, Facebook will be more backward. Facebook गश चलन, Facebook गश न बंद गसन कह, अलबत्ता यम जन यम इलिटरेट्स करन यम तिमन खिलाफ गश एक्शन नियन। आपको हमारी आज की नशिस्त कैसी लगी, हमें जरूर लिखकर भेजिए। हमारा पता है पेश कदम, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अवंतीपुरा, कश्मीर। या हमें ईमेल करें peshkadam@gmail.com, peshkadam@gmail.com। आप हमसे फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। ज्वाइन करें पेश कदम रेडियो क्लब फेसबुक पेज या पेश कदम रेडियो क्लब फेसबुक ग्रुप। हमें अपने दिन का हिस्सा बनाने के लिए शुक्रिया। इसी के साथ पेश कदम के आज के शुमारे का वक्त खत्म हो जाता है, तो फिर दीजिए मिर्जा तजम्मुल, इरवा बट्स और पेश कदम की पूरी टीम को इजाजत। अल्लाह हाफिज। सबसे अलग है, सबसे जुदा, सुनो एक नई आवाज, बातें नई है, नया अंदाज, सुनो एक नई आवाज, दिल से है आपके साथ, आप पेश कदम को सुन सकते हैं FM 102.6 मेगाहर्ट्ज पे इतवार को सुबह 9:15 पर, और इसी प्रोग्राम को आप दोबारा सुन सकते हैं बुधवार को शाम 6:30 पर।